Hello students, today we will study Symbols table and its implementation. That is, what is symbol table and which data structures are used to create symbol table. The symbol table is a data structure used for storing information about program constructs. Program constructs like variable names, function names, classes, objects, interfaces, etc. What informations can be stored? Suppose if we consider a variable, so what information can be stored regarding variables? That is the name of the variable, value of the variable, type of the variable, scope of the variable, and so on. The same way, consider the functions. So what information can be stored? The name of the function, the return type of the function, the number of arguments passed to the function, and so on. So, symbol table is used to store the information about program constructs. This information are accessed by all the phases of the compiler. Now, let's see what is the purpose of symbol table. First one, to store the names of all entities in structured form at one place. That is, we have to use some data structures. Data structures are used for storing and accessing information in structured form. So, symbol table is used to store all the information at one place in structured form. Second one, to verify if a variable has been declared. जैसा कि सी लैंग्वेज में होता है कि किसी वेरिएबल को अगर हमें यूज़ करना है तो उसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है. बिना डिक्लेयर किए हुए हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं. So that can be verified using symbol table if the variable has been already declared or not. The third one, to implement type checking by verifying assignments and expressions in the source code. तो थर्ड यूज है कि वेरिएबल्स का टाइप चेक करना. कोई भी एक्सप्रेशन है, सपोज करिए x प्लस वाई, वेयर x इंटीजर टाइप है एंड y फ्लोट टाइप है. तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई करने के लिए हमें दोनों ही वेरिएबल सेम टाइप के होने चाहिए. तो हम यहाँ पे टाइप चेक कर सकते हैं कि x किस टाइप का है और y किस टाइप का है. तो फॉर टाइप चेकिंग पर्पजेज वी कैन रेफर सिंबल टेबल. फोर्थ वन, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ए नेम. तो कोई वेरिएबल है उसका हम स्कोप डिटरमाइन करने के लिए भी सिंबल टेबल यूज करते हैं. स्कोप दो तरह का हो सकता है, लोकल और ग्लोबल. अगर स्कोप ग्लोबल है तो उस वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं. अगर उसका स्कोप लोकल है, डेट इज़ कि कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है तो वो उस फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है. इट मीन्स द वेरिएबल इज लोकल टू दैट फंक्शन. उस वेरिएबल को आप फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं. तो किसी भी वेरिएबल का स्कोप डिटरमाइन करने के लिए भी हम सिंबल टेबल का यूज करते हैं. लेट्स सी द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन सिंबल टेबल. The allocate operation is used to allocate memory for a new symbol table. अगर कोई नई symbol table create करनी है उसके लिए memory allocate करने के लिए we perform allocate operation. The free operation is used to release the memory allocated to symbol table. Symbol table को जो memory allocate हुई है अगर उसको release करना है तो we have to use free operation. Lookup operation is used to search an entry in the symbol table. अगर किसी भी आइटम करस्पॉन्डिंग हमें सर्च परफॉर्म करना है सिंबल टेबल में तो वी हैव टू परफॉर्म लुकअप ऑपरेशन. टू इंसर्ट ए न्यू एंट्री इन द सिंबल टेबल वी हैव टू परफॉर्म इंसर्ट ऑपरेशन. टू सेट ए एट्रीब्यूट टू ए एंटिटी इन द सिंबल टेबल वी यूज टू परफॉर्म सेट एट्रीब्यूट ऑपरेशन. और किसी भी एंटिटी की कोई एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए we have to perform get attribute operation. Now let's see what data structures can be used for creating symbol table. So there are mainly three data structures: list, search trees and hash table. Let's see one by one. The first one is list or linear list. It means the data structure in which items are stored sequentially. ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है जिसमें आइटम्स एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं, लाइक एरे. तो हम यहाँ पे एरे यूज़ कर रहे हैं सिंबल टेबल के आइटम्स को स्टोर करने के लिए.
तो एरे में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के अकॉर्डिंग स्टोर होगी, यानी जो आइटम जो एंट्री पहले आएगी उसकी एंट्री पहले होगी, जो बाद में एंट्री फाइंड आउट होगी उसकी एंट्री बाद में होगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इस डेटा स्ट्रक्चर में एंट्रीज स्टोर की जाएंगी। एक पॉइंटर वेरिएबल है अवेलेबल, यू कैन सी दैट इन द फिगर, दैट पॉइंट्स टू द फर्स्ट एम्प्टी लोकेशन इन द लिस्ट। तो ये अवेलेबल पॉइंटर उस एंट्री को पॉइंट कर रहा है जो एम्प्टी है, जहाँ पे आप कोई नई एंट्री इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब चूँकि एरे है, एरे में आइटम्स सीक्वेंसली स्टोर होते हैं, तो अगर हमें इसमें सर्च परफॉर्म करना है तो सर्च भी हम सीक्वेंसली परफॉर्म करेंगे। सीक्वेंसली का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिगिनिंग से एंड तक आइटम्स को एक एक करके सर्च करेंगे। ओके, और अगर आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है तो दिस विल बी एन एरर। द एरर इज यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड नेम, यानी इस टाइप का वेरिएबल या फंक्शन नेम डिक्लेयर नहीं है प्रोग्राम में। दूसरा कि हमें यह भी चेक करना होता है कि कोई एक वेरिएबल या कोई एक फंक्शन एक से अधिक बार तो अपीयर नहीं हो रहा है। जैसा कि सी लैंग्वेज में कोई भी दो वेरिएबल्स के नाम सेम नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ये भी चेक करना रहता है कि कोई वेरिएबल ऑलरेडी एक से अधिक बार डिक्लेयर तो नहीं किया गया है। दैट कैन ऑल्सो बी चेक्ड, एंड इफ दिस सिचुएशन अकर्स एन एरर मल्टीपल डिफाइंड नेम इज रेज्ड। क्योंकि आइटम्स इसमें सीक्वेंसली ऐड हो रहे हैं तो इंसर्शन इज वेरी फास्ट। हाउ? द अवेलेबल पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट एम्प्टी लोकेशन इन दिस लिस्ट। तो अवेलेबल पॉइंटर उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो खाली है, तो डायरेक्ट उस पोजीशन पर जाके हम आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी फास्ट, दिस कैन बी परफॉर्म्ड इन कांस्टेंट टाइम, बट इट टेक्स मच टाइम इन सर्चिंग एन आइटम, क्योंकि सर्च सीक्वेंशियल होगी, हमें फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक सर्च परफॉर्म करना है। इट विल टेक मोर टाइम, एंड एज द साइज ऑफ द सिंबल टेबल ग्रोज, सर्च टाइम becomes more and more. The only drawback is that the size of a symbol table grows as the number of items increased, as well as the search time also increased as the symbol table size is increased. Okay. Now the next data structure is search tree. Search tree means binary search tree. जैसा डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि बाइनरी सर्च ट्री कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री में जो लेफ्ट चाइल्ड होता है उसकी वैल्यू अपने पेरेंट से छोटी होती है, और जो राइट चाइल्ड होता है उसकी वैल्यू अपने पेरेंट से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट होगी वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्रिएट की जाएगी। तो इस बाइनरी सर्च ट्री में जो नोड होगा, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि एवरी नोड हैज़ 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज लेफ्ट पॉइंटर, सेकेंड इज द नेम ऑफ द एंटिटी, थर्ड इज द इंफॉर्मेशन और एट्रीब्यूट्स रिगार्डिंग द एंटिटी, एंड द last one is the right pointer, that is pointer to the right child. Okay, so names are stored in alphabetical order. तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अगर चाइल्ड की वैल्यू अपने पेरेंट से कम है तो वो लेफ्ट में जाएगा, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर किसी चाइल्ड की वैल्यू अपने पेरेंट से ज़्यादा है तो वो उसका राइट चाइल्ड बनेगा। तो क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री फॉर्म हो रही है, और बाइनरी सर्च ट्री में जो सर्च ऑपरेशन होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है। जो बाइनरी सर्च ट्री का कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log n होती है, जो कि बिग O ऑफ n से ज़्यादा होती है। दैट इज इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव देन सीक्वेंशियल सर्च। तो दिस इज बेटर देन द लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो इन दिस वे द आइटम्स आर स्टोर्ड जस्ट लाइक बाइनरी सर्च ट्री। तो लास्ट डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज द हैश टेबल। तो यहाँ पे हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो यहाँ पे हम 2 टेबल्स मेंटेन करते हैं, एक सिंबल टेबल जिसकी साइज n होती है, यानी कि जो इंडेक्स रेंज होता है 0 से n-1 तक, और इस टेबल में वी कीप पॉइंटर्स टू द सिंबल टेबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इंडेक्स नंबर 5 है तो इंडेक्स नंबर 5 हैज अ पॉइंटर टू ऑल द एंटिटीज इन द प्रोग्राम whose hash value is 5। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ हैश फंक्शन हो रहा है
तो वी आर यूजिंग हैश वैल्यू। जो हैश वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू 0 से n-1 के बीच में आएगी। तो there are different techniques to calculate the hash value. Okay, so whatever the hash value comes, it comes in the range of 0 to n-1. Hashing में insertion or deletion is very fast. How? To perform an insertion, first of all we have to calculate the hash value of the entity. Whatever the hash value, we directly go to that index and insert the entity. Okay. Suppose if you look at the figure, suppose an entity has the hash value 1. Okay, so directly we go to the index 1, and index 1 pointer is pointing to the entity whose hash value is 1. तो उस इंडेक्स 1 पे जो पॉइंटर जिस सिंबल टेबल को पॉइंट कर रहा है, उस सिंबल टेबल में सारी एंटिटीज वही होंगी जिनकी हैश वैल्यू 1 होगी। तो उस सिंबल टेबल में जाके उस एंटिटी को ऐड कर सकते हैं। द सेम वे इफ यू हैव टू परफॉर्म सर्चिंग, तो अगेन वी हैव टू कंप्यूट द हैश वैल्यू, और जो भी हैश वैल्यू आएगी, सपोज द हैश वैल्यू इज 0, तो हम इंडेक्स नंबर 0 के पॉइंटर को एक्सेस करेंगे। ओके, तो दिस इज द वे वी कैन परफॉर्म हैशिंग, एंड दिस improve the accessing time, that is insertion, deletion and search operations become more efficient as compared to list and search tree data structures. So most of the compilers use hash table for maintaining and storing symbol table. Hope you will be understand what is a symbol table, what is the purpose of symbol table, what are the operations performed on a symbol table, and what are the data structures are used to create and maintain symbol tables. Okay. Thanks for watching. Please like and subscribe the channel. Thank you.